अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। वजीर सेहत हरीश राव ने निम्स हॉस्पिटल के नीरो डिपार्टमेंट में किया जदीद तिब्बी आलात का इफ्तिताह। कहा, हुकूमत गरीबों को कॉरपोरेट तर्ज के इलाज की सहूलत सरकारी अस्पतालों में फराहम कर रही है। टीआरएस एमएलसी कविता 2 और 3 जनवरी को करेंगी केरला का दौरा। इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस में करेंगी शिरकत। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन ने इकोनॉमिक सपोर्ट स्कीम का किया ऐलान। 19 दिसंबर से कर्जजात के लिए ऑनलाइन दाखिल की जा सकती हैं नई दरखास्तें। साल 2016-17 के ज़ेर इल्तिवा दरखास्त गुजारों को मायूसी का सामना। तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर व सेंट्रल वक्फ काउंसिल के रुकन हनीफ अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोहे इमाम जामीन तिरुमल गिरी की वक्फ इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करने रियासती वक्फ बोर्ड से अपील। तेलंगाना कांग्रेस सीनियर कायदीन की जानिब से टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी के खिलाफ खुलेआम बगावत की शुरुआत। रेवंत रेड्डी के एकतरफा फैसलों के खिलाफ सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का के घर पर इजलास। बीजेपी ने पाकिस्तान के वजीर बिलावल भुट्टो के खिलाफ किया मुल्क भर में एहतजाज। हैदराबाद में बंडी संजय ने की रैली की क़ियादत। कहा, भारतीय वजीर आज़म के खिलाफ तबसीरे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल के नीरो डिपार्टमेंट में 2 करोड़ की लागत से नस्ब जदीद तरीन तिब्बी आलात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि डॉक्टर हमेशा तालिबे इल्म होते हैं। उन्होंने कहा कि नई तब्दीलियों और तकनीकी इल्म को अप टू डेट रखा जाना चाहिए। हरीश राव ने मजीद कहा कि रियासत तेलंगाना डायलिसिस के मरीजों को खिदमात फराहम करने में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क की पहली रियासत है जिसने सरकारी अस्पतालों में सिंगल यूज़ फिल्टर डायलिसिस सिस्टम दस्तयाब करवाया है, जबकि पहले ये कॉरपोरेट अस्पतालों तक महदूद था। रियासत के सरकारी दवाखानों में आरोग्यश्री के तहत बिना कोई खर्च के डायलिसिस की सहूलत फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत डायलिसिस पर सालाना 100 करोड़ रुपए खर्च करती है। భారతదేశంలో సింగిల్ యూజ్ ఫిల్టర్ డయాలసిస్ సిస్టమ్ను ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో మొట్టమొదలు స్టార్ట్ చేసిన రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం, మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. పేద ప్రజలకు కూడా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఆరోగ్యశ్రీ కింద ₹1 ఖర్చు లేకుండా సింగిల్ యూజ్ ఫిల్టర్ సిస్టమ్ ద్వారా డయాలసిస్ చేసేటువంటి సేవల్ని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం తెచ్చుకున్నాం. ఈరోజు దేశంలోని అనేక రాష్ట్రాలు కూడా దీన్ని చూసి కాపీ చేస్తూ ఉన్నాయి. మిగతా రాష్ట్రాలు కూడా ఈ పద్ధతిని అమలు చేయడం అనేది మనం చూస్తున్నాం. ఈ మధ్య తమిళనాడులో కొత్తగా వచ్చిన ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ గారు మేము తెలంగాణ డయాలసిస్ మోడల్ని అడాప్ట్ చేస్తున్నాము అని ఈ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ఇన్ తమిళనాడు. ఈ ఫ్రీ డయాలసిస్ మీద ప్రతి సంవత్సరం 100 కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు పెడతా ఉంది. ఈ డయాలసిస్ పేషెంట్స్కు ఫ్రీ బస్ పాస్ ఇచ్చినాము, వారికి ఆసరా పెన్షన్ కూడా ఇస్తా ఉన్నాము. ఈవెన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసుకున్న వారికి లైఫ్ టైం మెడిసిన్స్ కూడా ఫ్రీగా ఇస్తున్నటువంటి ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం. తెలంగాణలో ఇన్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ 50 lakh సైకిల్స్, 50 lakh డయాలసిస్ సైకిల్స్ను పూర్తి చేసుకున్నాం. ప్రతి ఇంటికి ఉపరితల శుద్ధి చేసిన తాగునీరు అందిస్తున్న తొలి రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం. ఈరోజు ప్రజల్లో ఎక్కువ బీపీ షుగర్లు బాగా పెరిగిపోయినాయి. ప్రతి ఇంటికి కూడా ఇప్పుడు ఫస్ట్ రౌండ్ అయిపోయింది, వీఆర్ డూయింగ్ సెకండ్ రౌండ్ ఆఫ్ ఎన్సిడి స్క్రీనింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. సో వారిని గుర్తించడమే కాదు, వారికి అవసరమైన మందులు, ఒక నెలకు సరిపడా మందులు ఒక బ్యాగ్లో పెట్టి ఇంటికి వెళ్ళి ఆశా వర్కర్ ఇస్తున్నారు. వాళ్ళ షుగర్ బీపీని మనం కంట్రోల్ చేయగలిగితే, వారి బీపీ షుగర్స్ను పర్ఫెక్ట్గా మనం మానిటర్ చేయగలిగితే, మనం అసలు కిడ్నీ పేషెంట్లు, ఈ హార్ట్ పేషెంట్స్, లంగ్స్ కానీ అదర్ లివర్ కానీ దెబ్బతినకుండా మనం కాపాడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఆ ప్రక్రియ కూడా స్టార్ట్ చేసినాం. ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అన్నట్టు ప్రాథమిక దశలో గుర్తించడం, అసలు రాకుండానే చూడడం, దానికి అవసరమైనటువంటి విధంగా ఇలా ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో పేదలకు కూడా కార్పొరేట్ వైద్యం, పేదలకు కూడా అన్ని రకాల వైద్యాన్ని కూడా ఈరోజు ఆరోగ్యశ్రీ కింద అందుబాటులోకి తెచ్చాం. ఆల్మోస్ట్ మన రాష్ట్రం 1000 కోట్ల రూపాయలు
ప్రతి సంవత్సరం ఆరోగ్యశ్రీ కింద మనం ఖర్చు పెడతా ఉన్నాం. बीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल के कविता 2 और 3 जनवरी को केरला का दौरा करेंगी। वो केरला के कुन्नूर में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस में हिस्सा लेंगी। कविता को इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस के नुमाइंदों ने इस प्रोग्राम के लिए मदऊ किया है। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन रवा माली साल 2022-23 के दौरान अहल और दिलचस्पी रखने वाले अक़लियती बिरादरियों यानी मुसलमानों, सिखों, पारसियों, बुद्धिस्टों और जैनों से इकोनॉमिक सपोर्ट स्कीम के तहत ताज़ा तौर पर ऑनलाइन दरखास्तें तलब की हैं ताकि सब्सिडी के ज़रिए लोन फराहम किया जा सके। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 19 दिसंबर से कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। कारोबार के क़याम और तरक्की के लिए कॉरपोरेशन की इकोनॉमिक सपोर्ट स्कीम के तहत बैंक से मुंसलिक और गैर बैंक मुंसलिक क़र्ज़ फराहम किया जाएगा। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ इसहाक ने दरखास्त फार्म दाखिल करने और क़र्ज़ के अहल अफराद की तफसीलात आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करते हुए मीडिया के सामने पेश की। बहुत दिन से काफ़ी नौजवान इकोनॉमिकली सपोर्ट स्कीम के लिए इंतज़ार कर रहे थे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 50 करोड़ की ये स्कीम 19 तारीख से ऑनलाइन शुरू होगी। 50 करोड़ को रिलीज़ करने के लिए हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब KCR साहब का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो है स्टेप बाय स्टेप कम्युनिटी में डेवलप करने के लिए जो स्कीमात आप ला रहे हैं वो काबिल सताइश है। क्योंकि पहले तो आपने टेमरीज खोल के जो है बच्चों को तालीम देने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उसके लिए बहुत बड़ा काम है वो। उसके बाद जो है गरीब बच्चियों की शादी के लिए शादी मुबारक जैसी स्कीम आपने लाई। उसके बाद जो है बहुत से लोग जो है बैरून ममालिक जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी आपने जो है ओवरसीज़ स्कॉलरशिप लेके आई। ऐसे बहुत से स्कीमात है जो माइनॉरिटी के लिए जो है बहुत ही काम कर रहे हैं, अच्छे स्कीम्स हैं बहुत। तो अभी नौजवानों के लिए जो बेरोज़गार हैं, जो नौजवान छोटे मोटे कारोबार करके जो है अपने घर को जो है पाल पोस के बड़ा करना चाहते हैं, वैसे स्कीमात के लिए अभी जो है इकोनॉमिकली सपोर्ट के लिए 50 करोड़ का जो है स्कीम जो है कैटेगरी 1 1,80% सब्सिडी, कैटेगरी 2 2,70% सब्सिडी के तहत शुरू किया गया है। ऑनलाइन में जो है इसको जो है जो भी आप बिज़नेस कैटेगरीज है वो ऑनलाइन में रखा जाएगा। आप उसको देख के आप कौन सा बिज़नेस करना चाहते हैं उसको आप देख के सिलेक्शन करके अप्लाई कीजिए। मैं फिर एक बार आप सबसे एक अपील करना चाहता हूँ कि जो है फेक मैसेजेस बना के जो है फेक डॉक्यूमेंट्स बना के जो है ग्रुप में डाला जा रहा है उसको आप बिलीव मत कीजिए। और जो है मी सेवा वाले इनकम सर्टिफिकेट के लिए बहुत से पैसे ले रहे हैं, ये सुनने में आ रहा है। मी सेवा वालों को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप की जो फ़ीस है वही फ़ीस लिया जाए। अगर किसी के पास अगर ज़्यादा पैसे लिए बल्कि अगर कंप्लेंट आए तो आप लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से रवा माली साल के लिए इकोनॉमिक सपोर्ट स्कीम के तहत नई दरखास्तें तलब करने की बात के साथ ही साल 2016-17 के दौरान जिन उम्मीदवारों ने दरखास्तें दाखिल की थी और जो इस लोन के मुंतज़िर थे उन्हें मायूसी का सामना है, क्योंकि आज मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों की जानिब से साल 2016-17 में तलब करदा ज़ेर इल्तिवा दरखास्तों के मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर चेयरमैन इम्तियाज़ इसहाक ने बताया कि पुराने दरखास्तों पर गौर नहीं किया जाएगा, सिर्फ ताज़ा तौर पर तलब की जा रही नई दरखास्तों पर गौर किया जाएगा। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से साल 2016-17 में 30% के बजाय 80% सब्सिडी लोन स्कीम का ऐलान किया गया था और उस वक्त तकरीबन 1 लाख से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हुई थीं जो आज तक इल्तिवा का शिकार हैं। तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर व सेंट्रल वक्फ काउंसिल के रुकन हनीफ अली ने कोहे इमाम ज़ामीन तिरुमलगिरी के वक्फ इमलाक पर नाजायज़ कब्ज़ात के हवाले से बीजेपी स्टेट ऑफिस में आज मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि कोहे इमाम ज़ामीन की 425 एकड़ अराज़ी सर्वे नंबर 196 के तहत है, ताहम 100 एकड़ अराज़ी को दूसरे सर्वे नंबरात के ज़रिए गैर कानूनी तरीक़े से कब्ज़ा किया गया है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के रुकन हनीफ अली ने रियासती वक्फ बोर्ड से वक्फ अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ की अपील की है। शिया मेंबर की ज़ायद जिम्मेदारी है, लेकिन शिया मेंबर के साथ पूरे बोर्ड की भी जिम्मेदारी है। ठीक है, शिया मेंबर भी है, सुन्नी मेंबर है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अगर कोई सुन्नी प्रॉपर्टी है
तो वो भी बचाने का काम शिया मेंबर का है एज ए बोर्ड मेंबर। तो चूंकि शिया मेंबर है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है कि शिया वक्फ प्रॉपर्टीज़ के प्रोटेक्शन करने के लिए। ठीक है, छुपा के रखा गया। सुनिए, इस चीज़ का तो मैं खुलासा नहीं कर सकता। इस चीज़ का खुलासा बोर्ड वाले करेंगे या शिया मेंबर आप क्या करेंगे। समझते हैं? नहीं, देखिए आप, बीइंग ए मेंबर, अगर मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का मेंबर हूँ तो मुझे एक एक चीज़ का पता होना चाहिए, एक एक चीज़ का मेरे को पता होना सवाल चाहिए। कर रहा हूँ। तो अगर वो ये पता होगा या नहीं होगा, अगर पता नहीं है तो उनकी समझो नाअहली है, एज ए मेंबर नाअहली। तब कौन से साल? कल ही एक वीडियो देखा, अल्ताफ हैदर रज़वी साबिक़ मेंबर MSG साहब का जो है स्टेटमेंट में देखा, ये अजमत जाफरी साहब इंटरव्यू ले रहे थे तो उसमें 82 एकड़ बताए। तो मैं आपको तो पूरे रिकॉर्ड के साथ बता दिया ना कितने एकड़ हैं। तो भाई एक मेंबर को ये बात, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के सीनियर मेंबर यानी काबिल मेंबर, उनको अगर 82 एकड़ बोल रहे हैं तो क्या हमारी वक्फ प्रॉपर्टी को हम बर्बाद करना चाह रहे हैं? ये सवाल उठता। क्योंकि मैं तो आपको देखिए, मैं अभी आप सुनिए मैं अभी आपको क्या बोला, सेंट्रल वक्फ बोर्ड यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल सेंट्रल और स्टेट कोऑर्डिनेशन में चलता है। अब जब कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तो यही होता है। अब जैसा कि GIS मैपिंग का काम चल रहा हमारा सारे देश में चल रहा, हम वक्फ बोर्ड का 100% डिजिटलाइजेशन ऑफ वक्फ रिकॉर्ड करवाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खर्चे से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खर्चे से GIS मैपिंग का काम चल रहा है, जो हैदराबाद तेलंगाना में भी जारी है, पूरे इंडिया में जारी है। तो भाई हम तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ का सेफगार्ड करने के लिए तैयार कर चुके हैं और काम भी कर रहे हैं। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने आज तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी के खिलाफ खुलेआम बगावत शुरू कर दी है। रेवंत रेड्डी के एकतरफा फैसलों के खिलाफ सीनियर कायदीन ने CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का की ख़यामगाह पर एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में मधु याशिकी, जग्गा रेड्डी, महेश्वर रेड्डी, उत्तम कुमार, दामोदर राज नरसिम्हा और दीगर कांग्रेसी कायदीन ने शिरकत करते हुए PCC की नई कमेटी की शदीद मुखालिफत की और कांग्रेस बचाव का नारा बुलंद किया। सीनियर कायदीन की शिकायत है कि पार्टी को तबाह करने की साजिश हो रही है। उन्होंने ऐलान किया कि वो हकीकी कांग्रेसी हैं। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने भी विक्रमार्का को फ़ोन करते हुए रेवंत रेड्डी की क़ियादत के खिलाफ मुनक्किदा इस इजलास की तायद का ऐलान किया। కొద్దిమంది నాయకులు కూడా కొన్ని విషయాలు నా దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. కావాలని అసలు కాంగ్రెస్ నాయకుల్ని, బలిష్టంగా ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీకి మూల స్తంభాలుగా ఉన్నటువంటి నాయకుల్ని కావాలని వారి వ్యక్తిగతమైనటువంటి సోషల్ మీడియాలో ఒక రకమైనటువంటి క్యారెక్టర్ని బదనాం చేస్తూ పోస్టింగ్ చేస్తున్నటువంటి విధానం కూడా కేవలం నాయకుల్ని నష్టపరచడం కాదు, కాంగ్రెస్ పార్టీకి కూడా తద్వారా నష్టం చేస్తూ ఉన్నారు. అటువంటి వాళ్ళ పైన కూడా దృష్టి పెట్టి సీరియస్ గా చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా కూడా దీంట్లో చర్చకు వచ్చింది. తప్పనిసరిగా ఆ రకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు గత సంవత్సరం నుంచి జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఒక కుట్రపూరితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీని బలహీనపరచడం కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీకి బలమైన నాయకుల పైన ఈ రకమైనటువంటి సోషల్ మీడియాలో పోస్టింగ్స్ పెట్టి ఆ బలమైన నాయకులను బలహీనపరుస్తూ తద్వారా కాంగ్రెస్ పార్టీని బలహీనపరిచి ఈ పార్టీని హస్తగతం చేసుకోవాలనో ఇంకోళ్ళకి అప్పచెప్పాలనో ఇంకో రకమైనటువంటి కాన్స్పిరసీ ఏదో జరుగుతుందనేటువంటి భావం కూడా కొద్దిమంది నాయకులు వ్యక్తపరిచారు. వీటన్నిటి దృష్ట్యా కాంగ్రెస్ పార్టీని రక్షించుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత సీనియర్ నాయకుల పైన అందరిపైన ఉంది. కాబట్టి మనం అందరం ఆ కార్యక్రమం చేపట్టాలని చెప్పి सीरियस का निर्णय చేయడం జరిగింది. बीजेपी ने पाकिस्तान के वजीर बिलावल भुट्टो की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ तबसरे पर आज मुल्क भर में एहतजाज किया।
हैदराबाद में भी एक एहतजाजी रैली निकाली गई। हैदराबाद सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कमेटी के ज़ेर एहतमाम पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय ने बशीरबाग में वाक़े जगजीवन राम के मुजस्समे से टैंक बंड तक रैली निकाली। इस मौके पर खिताब करते हुए बंडी संजय ने पाकिस्तान के रहनुमा को खबरदार करते हुए कहा कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तबसरे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इस मौके पर बिलावल भुट्टो का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। वाज़ेह हो कि पीएम नरेंद्र मोदी पर पाकिस्तान लीडर बिलावल भुट्टो के रिमार्क्स पर बरहमी का इजहार करते हुए बीजेपी ने आज मुल्क भर में एहतजाज किया। तेलंगाना के आदिलाबाद में भी बीजेपी कायदीन ने एहतजाज करते हुए पाकिस्तानी लीडर बिलावल भुट्टो पर सख्त बरहमी का इजहार किया। G20 లాంటి దేశాలకు ఆతిథ్యం ఇచ్చి విశ్వ గురువుగా తల్లి భారత మాతను ప్రతిష్ఠిస్తున్న సమయంలో పాకిస్తాన్ లాంటి దేశాలు ఓర్వలేక ఒకవైపు భారతదేశం విశ్వగురు స్థానానికి పోతుంటే ఇప్పటికీ పాకిస్తాన్ లాంటి దేశాలు మదర్సా చదువులకే పరిమితమై ఈ దేశానికి ప్రపంచానికి విశ్వగురుగా ఉన్న స్థానాన్ని విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సర్జికల్ స్ట్రైక్ ద్వారా భారతదేశం యొక్క శక్తిని భారతదేశం వైపు కన్నెత్తి చూపితే ఏ విధంగా గుణపాఠం చెప్తామో నరేంద్ర మోడీ గారు సర్జికల్ స్ట్రైక్ ద్వారా గుణపాఠం చెప్పినప్పుడు కూడా ఇంకా పాకిస్తాన్ లాంటి దేశాలకు బుద్ధి రాలేదు. ఈ దేశ ప్రధానిగా నరేంద్ర మోడీ గారు బాధ్యత చేపట్టిన తర్వాత గతంలో నరేంద్ర మోడీ గారిని రాకుండా బ్యాన్ చేసినటువంటి అమెరికా లాంటి దేశాలే నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధాని అయిన తర్వాత రెడ్ కార్పెట్ వేస్తూ స్వాగతించిన విషయాన్ని పాకిస్తాన్ గుర్తుంచుకోవాలి. నరేంద్ర మోడీ గారు టెర్రరిస్ట్ కాదు, టెర్రరిస్టులను అణిచివేసే వ్యక్తి. నరేంద్ర మోడీ గారు గుజరాత్ అల్లర్లను బూచిగా చూపెట్టి నరేంద్ర మోడీ గారిని అప్రతిష్ట పాలన చేసే ప్రయత్నం చేస్తే గౌరవ సుప్రీంకోర్టే సాక్షాత్తు క్లీన్ చిట్ ఇచ్చిన విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. సిగ్గుండాల పాకిస్తాన్ విదేశాంగ మంత్రికి నీ తల్లినే నీ దేశానికి సంబంధించిన టెర్రరిస్టు బలి తీసుకున్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. అసలు ఈ పాకిస్తాన్ విదేశాంగ మంత్రి ఐఎస్ఐ నియంత్రణ ఉన్నాడు. ఐఎస్ఐ ఏం చెప్తే దానికి సరైన వ్యక్తి. ఈ దేశంలో ఎక్కడ బాంబు దాడులు చేయాలని కూడా దానికి అన్ని రకాల సహకరించే వ్యక్తి పాకిస్తాన్ విదేశ. మా ప్రధానమంత్రి మీద వ్యక్తిగత దూషణలకు పాల్పడడం ఇది నిజంగా చాలా ఘోరమైన ఏహ్యమైన చర్య. తక్షణం బిలావల్ భుట్టో గారు రాజీనామా చేయాలా. అట్లనే పాకిస్తాన్ తక్షణం భారతదేశ ప్రజలకు నరేంద్ర మోడీ గారికి క్షమాపణ చెప్పాలా. ఇది నరేంద్ర మోడీ గారిని అన్నమాట కాదు, ఇది యావత్ 140 కోట్ల 135 కోట్ల భారతదేశ ప్రజల్ని అన్నట్టుగా మేము భావిస్తున్నాం. భారతీయ ప్రజల మనోభావాల్ని కించపరిచిన బిలావల్ భుట్టో గారు వెంటనే రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. పాకిస్తాన్ ప్రజలు మాకెప్పుడు శత్రువులు గారు. పాకిస్తాన్ ప్రజల్ని మేమందరం ప్రేమతోనే చూస్తాం. కానీ నాయకులు ఇలాంటి చిల్లర మల్లర నాయకులు చేసేటువంటి చేష్టల వల్ల రెండు దేశాలు ప్రజల మధ్య దూరం ఏర్పడుతున్నది అని గమనించాలా. వెంటనే భారతీయులందరికీ క్షమాపణలు చెప్పాలని తక్షణం మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. शहर हैदराबाद के नुमाइश मैदान में जनवरी की पहली तारीख से शुरू होने जा रही ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन के लिए तैयारियां जारी हैं। नुमाइश सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट अश्विन मार्गन ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोविड के दौर के बाद इस साल हैदराबाद में नुमाइश का एहतमाम किया जा रहा है। इसके लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इस साल नुमाइश के टिकट की कीमत 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये कर दी गई है। मैं अश्विन मार्गम वाइस प्रेसिडेंट, सबको मेरा आदाब। अभी ये जो नुमाइश 82nd ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन नुमाइश जो चालू होने वाला है, शुरू होने वाला है 1 जनवरी को, इस नुमाइश के ग्राउंड में बहुत ही तेज़ी से सारे काम चल रहे हैं और ये हमारे को इल्म है कि पूरे लोग इसको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और हम भी बहुत सी उत्सुक हैं और सारे काम हम बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। टिकट का प्राइस जो है 10 रुपये बढ़ा है। पहले गए साल 30 रुपये था, इस बार हम 40 रुपये किए हैं और ये हमारी मजबूरी है ये, क्योंकि हमारे इतने सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं हम जो चला रहे हैं, तो उस वजह से मजबूरी के तौर पे हमने ये एंट्रेंस फ़ी बढ़ाया है। और हमारे पास कभी ये वास्ता है कि कम से कम 2,400-2,500 के बीच में हमारे स्टॉल्स रहते हैं और ये कम से कम 1100 से 1200 एप्लीकेंट्स को हम दिए जाते हैं और इस एप्लीकेंट्स में सारी दुनिया में सारे भारत देश से, जैसा राजस्थान हो, कलकत्ता हो, जयपुर हो या केरला हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे पार्टिसिपेंट्स आते हैं और सभी अपने
वेयर्स या जो अपने गुड्स लेके आके यहाँ पर बिजनेस करते हैं। और इस बार सारे काम हमारे ग्राउंड में बहुत सी तेज़ी से चल रहा है और बहुत ही उत्सुक हैं हम लोग भी, और पब्लिक भी बहुत ही बेचैन है ये नुमाइश के लिए इंतज़ार में। हम अल्लाह चाहे या अल्लाह ताला चाहे ये बहुत ही जल्द हम जैसे जो शुरू होता है 1 जनवरी को चालू हो जाएगा, और इस बार हमारे अटेंडेंस भी ज़्यादा रहेगा। हम कम से कम ये एक 22 लाख से ज़्यादा अटेंडेंस। बांसवाड़ा तहसीलदार के दफ्तर के रूबरू आज हफ्ते को सिविल सप्लाई हमाली वर्कर्स यूनियन के जेर एहतमाम धरना दिया गया। इस मौके पर एहतजाजी हमाल और दीगर जिम्मेदारान ने तहसीलदार गंगाधर को एक दरखास्त पेश करते हुए लोडिंग और अनलोडिंग के लिए फ़ी क्विंटल 30 रुपये का इजाफा करने, दशहरा का बोनस 15,000 रुपये करने और मिठाई के लिए 1500 रुपये फराहम करने के अलावा हादसाती तौर पर मरने वाले मजदूरों को 10 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने और हमाल तबके को डबल बेडरूम फराहम करने के अलावा दीगर मुतालबात की फौरी यकसुई की अपील की। 4వ రోజుకు సమ్మె చేరుకుంది। సమ్మె ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఏదైతే ఎగుమతి దిగుమతి క్వింటా రేటు 30 రూపాయలకు చెల్లించాలని, ప్రమాదవశాత్తు మరణించిన సివిల్ సప్లై హమాలి కార్మికుడి కుటుంబానికి 10 లక్షల రూపాయల ఎక్స్గ్రేషియా చెల్లించాలని, దసరా బోనస్ 15,000 రూపాయలు పెంచాలని, దసరా సందర్భంగా ఇచ్చే స్వీటు 1,500 రూపాయలతో ఇవ్వాలని, అదే కాకుండా సివిల్ సప్లై హమాలీలకు డబుల్ బెడ్రూమ్లు కేటాయించాలని, పని భద్రత కల్పించాలని, సొంత గోదాములు నిర్మించాలని తదితర డిమాండ్లతోటి ఈరోజు 4వ రోజులో సమ్మెలో భాగంగా బాన్స్వాడ తహసీల్దార్ ముందు ధర్నాకు పూనుకోవడం జరిగింది। ఇప్పటికైనా సివిల్ సప్లై రాష్ట్ర కమిషనర్, పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి గారు స్పందించి హమాలీల న్యాయమైన కోరికలను నెరవేర్చాలని చెప్పేసి ఏఐటీసీగా సివిల్ సప్లై హమాల్ వర్కర్స్ యూనియన్గా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం, హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం। तेलंगाना के जिले मंचिरियाल में एक घर में भयानक आग लगने का वाकया पेश आया, जिसकी वजह से एक ही खानदान के 6 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए। ये वाकया मंदामरी मंडल के वेंकटापुर में पेश आया। मुकामी शिवा अय्या नामी शख्स के मकान में कल आधी रात को आग लग गई, जिसकी वजह से उसके साथ साथ उसकी बीवी पद्मा, रिश्तेदार मोनिका, उसकी दोनों बेटियां और सिंगारेनी मुलाजिम शानिता जिंदा जल गए। आग लगने की वजह से मकान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तान हो गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। महकमे बरखी के हुकाम का कहना है कि यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं हुआ। हुकाम ने वाजे किया कि घर में गैस सिलेंडर भी नहीं फटा। मंचिरियाल के डीसीपी अखिल महाजन और एसीपी तिरुपति रेड्डी वाक़ई की इत्तला मिलने के बाद मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने तमाम जावियों से तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना भेज दिया गया। पुलिस ने जले हुए मकान से शवाहिद जमा किए। आसिफाबाद के चिंतला मानेपल्ली के मौजा गोडेम के नामदेव नामी शख्स को पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर अपने घर के पीछे गांजे की काश्त करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। एक मुसद्दक़ा इत्तला पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 13 अदद पौधे जब्त कर लिए जो घास में छिपा कर परवरिश पा रहे थे। कोटाला मंडल सीआई बुदेला स्वामी की निगरानी में एसआई विजय और दीगर पुलिस एहलकारों ने यह कार्रवाई अंजाम दी। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के एक गांव में वाक़े हीट्रो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के यूनिट में दाखिल होने वाला तेंदुआ को पकड़कर हैदराबाद के जू पार्क मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक तेंदुआ भटक कर हीट्रो फार्मा यूनिट के एच ब्लॉक में दाखिल हो गया था और बाहर निकलने का रास्ता ना पाकर इमारत के अंदर इधर उधर छलांगे लगा रहा था। यूनिट के सिक्योरिटी अमले ने हफ्ते की सुबह एच ब्लॉक में रिएक्टर के दरमियान तेंदुए को देखा और महकमे जंगलात के हुक्काम को इत्तला दी। बाज़-ए-आज़म महकमे जंगलात के हुक्काम ने शीशे में सुराख करके दूर से तेंदुए को बेहोश करने का इंजेक्शन दिया और उसे बाद में पकड़ते हुए हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क मुंतकिल कर दिया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। वज़ीर सेहत हरीश राव ने निम्स हॉस्पिटल के नीरो डिपार्टमेंट में किया जदीद तिब्बी आलात का इफ्तिताह। कहा हुकूमत गरीबों को कॉरपोरेट तर्ज के इलाज की सहूलत सरकारी अस्पतालों में फराहम कर रही है।
टीआरएस एमएलसी कविता 2 और 3 जनवरी को करेंगी केरला का दौरा। इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस में करेंगी शिरकत। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन ने इकोनॉमिक सपोर्ट स्कीम का किया ऐलान। 19 दिसंबर से कर्जजात के लिए ऑनलाइन दाखिल की जा सकती हैं नई दरखास्तें। साल 2016-17 के ज़ेर इल्तिवा दरखास्त गुजारों को मायूसी का सामना। तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर व सेंट्रल वक्फ काउंसिल के रुकन हनीफ अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोहे इमाम ज़ामीन तिरुमल गिरी की वक्फ इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करने रियासती वक्फ बोर्ड से अपील। तेलंगाना कांग्रेस सीनियर कायदीन की जानिब से टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी के खिलाफ खुलेआम बगावत की शुरुआत। रेवंत रेड्डी के एकतरफा फैसलों के खिलाफ सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का के घर पर इजलास। बीजेपी ने पाकिस्तान के वजीर बिलावल भुट्टो के खिलाफ किया मुल्क भर में एहतजाज। हैदराबाद में बंडी संजय ने की रैली की क़ियादत। कहा, भारतीय वजीर आज़म के खिलाफ तबसीरे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।